Hello everyone, good morning. In this video, we are going to learn a new lesson. The name of the lesson is Footprints Without Feet, chapter number 5. And the name of the writer is H.G. Wells. Before starting the lesson, let me ask you one thing. Is it possible footprints without feet? कि आप चले आपके पैर ना दिखे पर फुटप्रिंट सिर्फ दिखे? Is it possible? No, I don't think so. Or do you think is it possible for a man to become invisible? I do not think so. There are many movies in Bollywood and Hollywood, but in real life, what do you think? Is it possible to become an invisible man? No, not at all. But in this story, we are going to see a scientist who has invented and he has become an invisible man. We have to see in this story, is he using this invention in good manner or bad manner? So let's see. Can a man become invisible? This is the story of a scientist who discovers how to make him invisible. Does he use or misuse his discovery? So let's see. Read and find out. First, how did the invisible man first become visible? Second, why was he wandering the streets? So these two answers we will get from the reading of the text. Let's see. The two boys started in surprise at the fresh, muddy imprints of a pair of bare feet. Bare feet means without shoes and imprints means footprints. There were two boys. Okay, वो सरप्राइज हो जाते हैं. क्यों सरप्राइज हो जाते हैं? उनको कोई भी पर्सन नहीं दिखता, पर मड से भरा रास्ता है, वहां पर उन्हें फुटप्रिंट्स दिखती है, खुले पैरों से चलने वाले इंसान की. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? And where was the man? ठीक है, वहां पर पैरों के निशान दिख रहे हैं पर पर्सन नहीं दिख रहा, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं दिख रहा. तो वहां पे मिडल ऑफ लंदन में कोई वहां पर क्या कर रहा है, वो सोचने की बात है. As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. ठीक है, उनको फुटमार्क्स दिख रहे थे, फुटप्रिंट्स दिख रहे थे, पर कहां से वो आ रहे हैं उनका उन्हें पता नहीं लग रहा है. Further footprints followed, one after another, descending the steps and progressing down the street. ठीक है, descending means coming down, नीचे आ रहे हैं और स्ट्रीट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पर ह्यूमन बीइंग दिखता नहीं है. The boy followed, fascinated. Fascinated means attracted, until the muddy impressions fainter means dim. कम नहीं हो जाती है तब तक ये जो दोनों बॉयज है वो उसका पीछा करते हैं. And at last disappeared altogether. फिर एक साथ ही सब disappear हो जाता है, सभी footprints. The explanation of the mystery was really simple enough. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. Bewildered means surprised. ये दोनों सरप्राइज बॉयज के लिए बहुत ही सिंपल सा आंसर है. वो है कि एक साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया है हाउ टू मेक अ ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट. एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज ग्रिफिन. Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Finally, he swallowed. Swallowed means gulp, निगल जाना. Swallowed certain rare drugs, and his body became as transparent as a sheet of glass. ठीक है, और कुछ rare drugs उसने निगल लिए और उसकी वजह से उसका जो बॉडी है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट बन गया, जैसे कि एक ग्लास का टुकड़ा हो. दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, और सॉलिड भी उतना ही था. ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज,
ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, वो बहुत ही ब्रिलियंट था पर लॉलेस था। लॉलेस मीन्स नॉट ओबेइंग द लॉ, जो लॉ को ओबे नहीं करता था, फॉलो नहीं करता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। इजेक्ट मीन्स ड्राई आउट, उसे निकाल देना चाहते थे। उसके जो लैंडलॉर्ड था वो निकाल था, क्यों? क्योंकि उसको वो पसंद नहीं करता था। इन रिवेंज सेट फायर टू द हाउस एंड व्हाट ग्रिफिन हैज डन, ग्रिफिन हैज सेट फायर टू द हाउस, उसे जला दिया, हाउस को जला दिया। टू गेट अवे विदाउट सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, और वो दिख ना जाए कि किसने हाउस जलाया, इसलिए उसने क्या किया, अपने सारे कपड़े उतार दिए, क्योंकि अब वो इनविजिबल हो गया था, सिर्फ उसके कपड़े ही दिख सकते थे, इसलिए उसने कपड़े ही उतार दिए ताकि वो किसी को दिखे नहीं। Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. अब क्या हुआ, उसने घर जला दिया, अब उसके पास शेल्टर नहीं है, उसके पास कपड़ा नहीं है, पैसे नहीं है और इनविजिबल है। कब तक? जब तक उसके स्टेप्स मड पर दिखते नहीं है, तब तक वो इनविजिबल है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। Now let's see what happens ahead. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. ठीक है, वो इजीली एक्सेप्ट वहाँ से एस्केप हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो इनविजिबल है, दिखाई तो देता नहीं है। बट हिज एडवेंचर्स वेर बाय नो मीन्स ओवर, पर उसका एडवेंचर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ही हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वेंडर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स। बहुत ही ठंडी है, विंटर का टाइम है, और ऐसी ठंडी में वो लंदन में बिना कपड़ों के घूम रहा है। It was midwinter. The air was bitterly cold and he could not do without clothes. ठीक है, और बिना कपड़ों से इतनी ठंडी में रहना उसके लिए मुश्किल था। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. ठीक है, ऐसे ही गलियों में घूमने के बजाय उसने क्या सोचा, एक स्टोर में वो छुप जाए। ठीक है, थोड़ी गर्मी उसे मिले इसलिए। Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. अब क्या होता है, उसको पैसे नहीं देने हैं और उसको अब कवरिंग मिल जाता है, क्लोथ मिल जाता है, उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो वो बहुत ही खुश है अभी। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. Soon with shoes and overcoat and a wide-brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. एक के बाद एक कपड़े पहनते जाता है और अब वो इनविजिबल से विजिबल पर्सन बन जाता है। In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. ठीक है, और एक के बाद एक खाने की चीज़ें भी वहाँ से उठाने लगता है और अपना पेट भरता है। Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts. Quilts means warm covers like a blanket. ठीक है, रजाई, उसके ऊपर वो सो जाता है। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. अब क्या है, वो सो गया है, अब वो स्टोर खुलने से पहले उठ जाए तो अच्छी बात है। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. पर होता क्या है, दूसरे दिन सभी असिस्टेंट्स आ जाते हैं, तब तक वो उठता नहीं है। When he saw a couple of them, जब वो देखता है कि कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, तो वो क्या करता है, approaching he panic means frightened. जब उसको वो देखता है कि सब लोग उसके नजदीक आ रहे हैं, तो वो पैनिक हो जाता है, डर जाता है, and began to run, और दौड़ने लगता है। Literally gave chase, और उसके पीछे पीछे वो असिस्टेंट्स भी दौड़ने लगते हैं।
In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. और वो कैसे बच पाता है? अपने सारे कपड़े उतार देता है, फिर से इनविजिबल बन जाता है, तब जाके वो सबसे बच पाता है. So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. अब वो बच तो गया पर फिर से इनविजिबल हो चुका है, फिर से नेकेड हो चुका है और उसे बहुत ही ठंड लग रही है. This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. Stock means godown. अब वो क्या करता है, एक थिएट्रिकल कंपनी के गोडाउन में चला जाता है और वहाँ पर उसको यकीन है उसको कपड़े तो मिलेंगे पर साथ साथ में उसका फेस का जो पार्ट है वो तो बिना कवर के ऐसे ही दिखेगा ही नहीं क्योंकि इनविजिबल है, इसलिए वो वहाँ पर जाता है, वहाँ पर उसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा जो उसके फेस को भी कवर कर पाए. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. He soon found a suitable shop. He made his way, invisible, upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead. ठीक है, अब वो अपने गले के पूरी जगह पर, सभी जगह पर बैंडेजेस वैसे लपेट लेता है. डार्क ग्लासेस, false nose, big bushy side ring whiskers and a large hat. ठीक है, वो क्या करता है, ग्लासेस पहन लेता है, चश्मे पहन लेता है, फॉल्स नोज लगाते हैं, बिग बशी साइड विस्कर्स लगा देता है एंड अ लार्ज हैट, और बड़ी सी एक हैट पहन लेता है. टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही carelessly मीन्स क्रूअली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड. वो शॉपकीपर को पीछे से बहुत ही जोर से मारता है. आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम फॉर ऑल द मनी ही कुड फाइंड. और वहां से सारे पैसे चुरा लेता है ताकि उसे वो हेल्पफुल हो सके, उसकी मदद हो जाए. ठीक है, उसको कहीं पे भी ज़रूरत पड़े तो उसका यूज कर सके, इसलिए सारे पैसे वो चुरा लेता है. नाउ रीड एंड फाइंड आउट. व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक. एसेंट्रिक मीन्स फ्रीकी, शंकी. ठीक है, हिंदी में हम शंकी बोलते हैं. Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? So that we are going to find out after reading the text. Second is, what curious episode occurs in the study? And third is, what other extraordinary things happened at the inn? So these three questions answer we are going to find from the text which we are going to read. Now let's go ahead. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. ठीक है, एक लोकल इन में जाके वो 2 rooms बुक करता है. The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. सबके लिए वो unusual event था क्योंकि इतनी ठंडी में कोई भी वहाँ पर ज़्यादा रुकने के लिए नहीं आता था. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. All tongues wagging means people talk about. ऐसे स्ट्रेंजर पर्सन को देखकर सभी लोग एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं. मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. ठीक है, वो मिसेस हॉल जो है वो ग्रिफिन के साथ बहुत ही फ्रेंडली होने की ट्राई करती है. बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर माई रीजन फॉर कमिंग टू ईपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड मीन्स लॉनलीनेस. ठीक है, ग्रिफिन क्या बताता है कि मेरा आइपिंग आने का बस एक ही इरादा है कि मुझे अकेले रहने के लिए मिल सके. आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क. बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस. ठीक है, वो बोलता है कि मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मुझे मेरा वर्क करना है और मुझे एक्सीडेंट में मेरा फेस अफेक्ट हो चुका है, इसलिए मैंने सभी जगह पर ऐसे बैंडेजेस लपेट रखे हैं. Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance. ठीक है, वो मिसेस हॉल को एडवांस में ही पेमेंट दे देता है जो रूम उसने बुक करवाया उसका. मिसेस हॉल was
prepared to excuse his strange habits and irritable temper. ठीक है, वो प्रिपेयर थे कि इरिटेबल टेम्पर को ऐसे ही निभाने के लिए, ठीक है. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, पर पैसे कब तक चलते जो चुराए थे. एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश. ही प्रिटेंडेड मेड एक्सक्यूज, however that he was expecting a check to arrive at any moment. वो क्या बताता है कि किसी भी पल उसको चेक मिलने वाला है और वो उसका पेमेंट कर देगा. Shortly afterwards a curious episode occurred. फिर एक बहुत ही curious episode होता है. Very early in the morning a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. स्टडी रूम से उनको कुछ आवाज आता है और उस आवाज से वो दोनों जाग जाते हैं. Creeping downstairs, they heard the chink. Chink means sound of coins. Coins गिरने की उनको आवाज सुनाई देती है. Chink of money being taken from the clergyman's desk. ठीक है, उनकी डेस्क से कोई पैसे ले जा रहा है और उनको सिक्के गिरने की आवाज सुनाई देती है. वो सिक्के की आवाज सुनकर वो खड़े हो जाते हैं, उठ जाते हैं. Without making any noise and with a poker means rod, grasped firmly in his hand. उनके हाथ में वो रॉड लेकर वो आगे बढ़ते हैं. The clergyman flung open the door, surrender. और डोर को खोलते ही वो बोलते हैं सरेंडर, अपने आप को मुझसे सरेंडर कर दो. Let's see what happens ahead. ठीक है, वो ग्रिफिन वो फंस गया है, ठीक है, क्योंकि किसी ने उसे चोरी करते हुए देख लिया है. Then to his amazement means surprise, he realized that the room appeared to be empty. पर जैसे ही वो डोर ओपन करता है क्लर्जीमैन, तो वो देखता है कि रूम में तो कोई नहीं है. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. सभी जगह पर देखता है कि कोई वहां पर छुपा हो. There wasn't a sign of anybody, पर उनको कोई दिखाई नहीं देता. Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. ठीक है, वो जैसे ही ड्रॉवर खोलता है तो देखता है कि उनके पैसे वहां पर नहीं है. Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. फिर वो सभी को ये बात बताते रहते हैं कि कोई चोरी तो करके गया पर कोई वहां पे मिला नहीं. But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. ठीक है, पर वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था जितना कि मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ हुआ था. The landlord and his wife were up very early morning and were surprised to see the scientist's door wide open. वो देखते हैं कि साइंटिस्ट का डोर खुला था. Usually it was shut and locked and he was furious if anyone entered his room. वो बहुत ही गुस्सा हो जाता था, अगर ग्रिफिन की बात है, बहुत ही गुस्सा हो जाता था अगर कोई उसके रूम में विदाउट परमिशन एंट्री हो जाए. The opportunity seemed too good to be missed. अब मिसेस हॉल को बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है. They peeped around the door, saw nobody and decided to investigate. वो क्या करते हैं, देखते हैं कि रूम में कोई नहीं है, तो वो पता करने के लिए कि ग्रिफिन सच में कौन है, वो पता करने के लिए तुरंत ही वहां पे रूम में एंटर हो जाते हैं. The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time. ठीक है, जो बेड क्लोथ्स थे वो थोड़े ठंडे थे, भीगे हुए थे. ठीक है, तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ देर पहले ही साइंटिस्ट वहां पर मौजूद था. And stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. और बैंडेजेस जो हमेशा वो पहनता था वो वहां पे रूम में टेबल पर पड़े हुए थे. All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. Sniff means breathing sound. उनको कुछ सुनाई देता है कि कोई वहां पे सांस ले रहा है. A moment later, the hat on the bedpost leaped up. Leaped up means jump up, and dashed itself into her face.
डस्ट मीन्स हीट, और उसको वो सांस लेने की आवाज़ सुनाई दे रही है, और फिर उसके कुछ ही मोमेंट के बाद जो हैट जो टेबल पर पड़ा था वो वहाँ से जंप होकर उसके फेस पर हिट होता है, ठीक है, मीन्स उसके फेस पर जाके टकराता है। Then the bedroom chair became alive, और फिर जो बेडरूम के चेयर है वो भी हिलने लगती है। Springing into the air, it charged straight at her legs foremost, ठीक है, और जैसे उसके legs जो है वो हवा में उड़ने लगते हैं। As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. और फिर जब तक वो चेयर्स उन दोनों को रूम से बाहर नहीं निकाल देते तब तक वो चेयर्स उनके पीछे पीछे रहते हैं, और जैसे ही वो बाहर निकल जाते हैं रूम लॉक हो जाता है। Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. Hysterics means in a great excitement. She was convinced that the room was haunted by spirits. ठीक है, और उनको लगता है कि कोई आत्मा ने उस रूम को घेर लिया है। And that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. ठीक है, और लगता है कि वो गोस्ट जो है वो इस फर्नीचर में आ गया है। My poor mother used to sit in that chair. ठीक है, वो सोचती है कि उनकी जो मदर है वो वहाँ पर बैठती थी। She moaned, moan means cry, to think it should rise up against me now. ठीक है, और सोचती है कि शायद उन्हीं का आत्मा उस चेयर में आ गया है। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. Witchcraft means black magic. ऐसा सोचा जाता है कि ये black magic से सब हो रहा है, but witchcraft or not. When news of the burglary means theft, चोरी, at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. और जैसे ही क्लर्जीमैन के घर में चोरी होने की बात सामने आती है तो सब लोग क्या सस्पेक्ट करते हैं, ऐसा ही मानते हैं कि इसमें ये जो स्ट्रेंज मैन है, स्ट्रेंज पर्सन है, उसका हाथ होना चाहिए। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash. और सस्पिशन कब बढ़ता है? जब वो उसके पास कुछ रेडी कैश मिल जाता है, क्योंकि उसने पहले बताया था कि मेरे पास कैश नहीं है, कभी भी मेरा चेक आ सकता है, पर अब उसके पास कैश मौजूद है तो सब लोग ऐसा ही मानते हैं कि इसने ही चोरी की है। Though he had admitted not long before that he had no money, the village constable was secretly sent for. वहाँ पर एक कांस्टेबल को बुलाया जाता है। Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. ठीक है, और मिसेस हॉल पहले ही साइंटिस्ट के पास चली जाती है। I want to know what you have been doing to my chair upstairs. और पूछ लेती है कि तुम मेरी चेयर्स के साथ ऊपर क्या कर रहे थे। And I want to know how it is you came out of an empty room, how you entered a locked room. और वो पूछती है कि तुम एम्प्टी रूम में कैसे एंटर हुए और लॉक रूम में कैसे एंटर हुए, कैसे बाहर आए, वो सब कुछ वो उसे पूछने लगती है। Let's see what happens ahead. The scientist was always quick-tempered. Quick-tempered means जल्दी गुस्सा आ जाता था, उसको बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है। Now he became furious. Furious means frightened. You don't understand who or what I am? He shouted. Very well, I will show you. Suddenly he threw off bandages, और वो एक के बाद एक bandages निकालने लगता है। Whiskers, spectacles and even nose. ठीक है, एक के बाद एक जो उसने ऐसे ही false nose और सब कुछ चिपका रखा था वो निकालने लगता है। It took him only a minute to do this. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. और सब लोग ऐसे हेडलेस मैन को देखकर बहुत ही घबरा जाते हैं। मिस्टर जाफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, और उसी टाइम पर मिस्टर जाफर वहाँ पर आ जाते हैं जो कांस्टेबल है, एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। ठीक है, अब
उनको ऐसे इंसान को अरेस्ट करना था जिसका कोई हेड ही नहीं है, ठीक है, सर नहीं है. बट जाफर वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी. पर जाफर उनकी ड्यूटी निभाने से पीछे नहीं हट रहे. इफ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन's अरेस्ट, then that person had to be arrested with or without his head. वो क्या सोचता है कि अगर मैजिस्ट्रेट ने ऐसा ऑर्डर दिया है कि ये पर्सन को अरेस्ट करना है तो उसका हेड हो या ना हो, उसको अरेस्ट करना ही है. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. ठीक है, और फिर जैसे ही पुलिसमैन उसको अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है तो एक के बाद एक उसके सारे गारमेंट्स, कपड़े वो उतारने लगता है. फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और लास्ट में उसका शर्ट. एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी. और फिर जो कांस्टेबल है जिसको देख नहीं पाता है, वैसे इंसान को अरेस्ट करने के लिए स्ट्रगल करने लगता है. ही कुड नॉट सी एट ऑल, जिसे वो देख नहीं सकता है, वैसे इंसान को पकड़ने के लिए वो ट्राई करने लगता है. Some people tried to help him, but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. पर कुछ लोग उसे हेल्प करने लगते हैं, पर उसको पंचेस पड़ने लगता है, ठीक है, जो कहाँ से आते हैं किसी को पता नहीं लगता. In the end, Jaffar was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. और फिर जाफर को एक बहुत ही जोरदार मुक्का पड़ता है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है. There were nervous, excited cries of hold him, but this was easier said than done. ठीक है, अब सब लोग चिल्ला उठते हैं कि कोई उसे पकड़ो पकड़ो, पर वो जितना बोलना आसान था उससे ज़्यादा वो करना बहुत ही मुश्किल था. Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. ठीक है, और ग्रिफिन वहाँ से चला जाता है और किसी को पता नहीं लगता है कि कहाँ से किसे पकड़ना है. सो लाइकवाइज ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम दैट, और इसी तरह वो वहाँ से भाग जाता है और बच जाता है. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु इज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट एंड हु हैज़ इन्वेंटेड अ गुड इन्वेंशन, but he has used that invention in wrong manner. Okay, so I hope you understood the story well and do not have any query. Now the questions, think about it. 2 questions are there and talk about it. 3 questions are there which you have to write in your notebook. I hope you have clear all your doubts even after reading this chapter. Thank you. Have a nice day. Bye bye.